that what we had done in the last class. Last class में अपने क्या किए थे? Last class में chapter 2 start हो चुका था. Chapter 2 had started. If you recall, these are the things which we had done in the last class. Okay, whereby I told you types of companies: OPC, public, private, then memorandum and articles, then incorporation process we just went through, and then I said OPC, what is a one person company, and I have discussed everything on OPC, and also not for profit company, which is section 8 company. Okay, so these are the things which we had done. I'll show you from the book once again, it will help you revise. So what we had done in the last class, let us once again see. Okay, there are terms which we know from beforehand, like prospectus, promoter, all these terms are known to you. Then formation of company, I told you types of companies, and I discussed that also. And in definition also, you have come across what is a government company and what is a holding company and a subsidiary company. Then I had spoken about this section, which is a very important section and an interesting section, section 3A. What does it talk about? It talks about, it talks about maintenance of minimum number of members in a company. Okay, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर होना चाहिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर होना चाहिए. अगर ये नंबर मिनिमम मेंबर से घट जाता है साल का कभी भी, तो 6 महीने तक वो रख सकेगा, बट 6 महीने के अंदर उसको मिनिमम नंबर को वापस रीइंस्टेट करना पड़ेगा. इफ इट द डिले इज बियॉन्ड 6 मंथ्स, देन द कंपनी विल बी पनिशेबल. Okay, then we have also done, just a moment. Then we have also done other chapters like, sorry, other topics like incorporation process, which I told you that you can just do it on your own, and broadly जो steps है वो मैं बता दिया था मेरे ख्याल से. And today once again I'll tell you, incorporation is a very important thing. So after incorporation we have started with, I believe, OPC, and we have done OPC and not for profit company, which is section 8 company. Okay, so today I will start the session with incorporation of company. It will help you understand how incorporation is done. Very important topic from chapter 2's perspective, and also from real life. क्या होता है, आप लोग जब सीए कर रहे हो, आप लोग का अड़ोस पड़ोस में और ऐसे सर्कल में जो भी जिसको भी कंपनी खोलना रहेगा, वो आपके पास आके आपको तंग करेगा, आपको पूछेगा कि क्या है भाई, कंपनी कैसे खोले. तो तब यही पढ़ाई का चीज आप उनको बता पाओगे प्रैक्टिकली. मेरा अभी थोड़ा देर पहले एक स्टूडेंट ने पिंग किया, बोला सर, बहुत पुराना स्टूडेंट, सर मेरे को कंपनी खोलना है, थोड़ा मदद करेंगे. मैं उसको एक नंबर दे दिया मेरा फर्म का, तो मेरा फर्म का एक नंबर दे दिया, मैं बोला कि बात कर ले, दे विल डेफिनेटली हेल्प यू. तो ये क्यों किया? क्योंकि ये सीए फर्म भी करता है कंपनी फॉर्मेशन. हाँ, सीए फर्म डज इट. ओके, सो सर ये इनकॉर्पोरेशन होता कैसे है, सेक्शन 7 क्या बोल रहा है, थोड़ा बताइए. सेक्शन 7 ऑफ कंपनीज एक्ट talks about incorporation of companies. That is how companies could be incorporated, how companies will be incorporated. It talks about that. Okay, all right. So how many of you feel that my voice is not clear? Just a thought, because एक student को नहीं सुनाई दे रहा है शायद, बाकी सबको सुनाई दे रहा है. Okay, okay, thank you. Okay, all right.
लाइक आई वाज सेइंग दैट इनकॉर्पोरेशन क्या है? एक कंपनी एक लीगल व्यक्ति है. कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन. तो एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन को जिंदगी देना इज इनकॉर्पोरेशन. Incorporation is like giving birth to a legal person. How? Through law. A company is created through registration, through legal process, and that process is known as incorporation of a company. Step one is always to reserve a name. Step one in this process is always to reserve a name. क्यों सर? क्यों नाम रिजर्वेशन स्टेप वन होता है? थोड़ा लॉजिकली बताइए. देखो, फंडा क्लियर है, क्लियर रखना. आज अगर एक कंपनी को रजिस्टर कराएंगे, कंपनी का डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे, कंपनी का कोई नाम से बनाएंगे ना, और वो नाम अवेलेबल है कि नहीं, पहले वो पूछताछ करना पड़ेगा. सपोज करो मेरा मन का एक नाम मैं दे दिया, फिर बाद में जाके देखा वैसा नाम का दूसरा कंपनी है, तो बहुत हौच-पौच हो जाएगा. तो इसीलिए पहला कदम जो लेना चाहिए इनकॉर्पोरेशन करने के लिए, वो है पहले से इंक्वायर करके देख के रखो तुम्हारा मन में जो नाम है वो नाम अवेलेबल है कि नहीं, और अगर नहीं है तो इसका सब्स्टिट्यूट क्या क्या हो सकता है. सो स्टेप वन ऑफ कंपनी फॉर्मेशन इज ऑलवेज नेम, रिजर्वेशन ऑफ नेम. ओके, नाउ आफ्टर दैट सर, आफ्टर दैट अपने क्या करते हैं? नाम एक बार रिजर्व हो जाता है तो बाकी प्रोसेस ऑफ रिजर्वेशन अपने करते हैं. सर बाकी प्रोसेस ऑफ रिजर्वेशन जैसे वही देखेंगे आज. अभी एक एक करके we will look at that. Okay, just a moment. All right. So सर बाकी क्या है थोड़ा बताइए. बाकी जो रिजर्वेशन वाला प्रोसेस है, that is something like this. Okay, see, first is you have to reserve the name of the company by filing e-application. Then you have to draft and sign MOA and AOA. What is MOA? Memorandum of Association. What is AOA? Articles of Association. And its submission to ROC. ROC को submit करना पड़ेगा. These documents have to be e-filed and e-stamped. What is the meaning, sir? E-filed and e-stamped. देखो आजकल जो भी डॉक्यूमेंट्स जो एमसीए के साथ अपने फर्निश करते हैं या सबमिट करते हैं वो सारा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होता है. यानी कि स्कैन्ड कॉपी और साइंड, स्कैन्ड एंड साइंड तो ऐसे ही होता है, और डिजिटल सिग्नेचर के जरिए फॉर्म्स भी अपलोड करना पड़ता है. ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया है इसको ई फाइलिंग बोला जाता है. तो सब सारा चीज ई फाइलिंग होता है. तो अभी ई फाइल्ड इसलिए बोला एंड ई स्टैम्प्ड इसीलिए बोला, इलेक्ट्रॉनिक स्टैंपिंग ही होता है. ठीक है, कंसेंट ऑफ द पर्सन्स नॉमिनेटेड एज डायरेक्टर्स. तो स्टेप वन है नेम रिजर्वेशन. स्टेप्स कॉपी में लिख सकते हो, भूलना नहीं चाहिए कभी. स्टेप वन इज नेम रिजर्वेशन. स्टेप टू इज आर्टिकल एंड मेमोरेंडम, MOA and AOA, MOA and AOA, filing and e-filing and e-stamping. And third step अभी तक क्या पढ़े? Consent of the directors. Directors consent. Directors consent. सर इसके साथ साथ और कुछ नहीं, इसके साथ साथ और कुछ नहीं. सर डायरेक्टर्स कंसेंट के बाद देखो एक स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस एंड अदर डिक्लेरेशंस, मतलब एक नहीं बहुत सारा डिक्लेरेशन है. सब्सक्राइबर को बोलना पड़ता है मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ, सच के सिवा कुछ नहीं कर रहा हूँ. सब्सक्राइबर्स टू व्हाट सर? सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम. मेमोरेंडम में एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी खोलने के लिए मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए, तो 7 नाम रहता है, वो सब्सक्रिप्शन क्लॉज बोला जाता है. मेमोरेंडम में एक क्लॉज है ना सब्सक्रिप्शन क्लॉज, वही लिखा रहता है मेमोरेंडम. ओके सर तो ये सब्सक्राइबर लोग को डिक्लेयर क्या करना पड़ता है कि मैं जो कह रहा हूँ सच कर रहा हूँ, सच के सिवा कुछ नहीं कर रहा हूँ. इट्स लाइक अ सेल्फ एफिडेविट, सेल्फ एटेस्टेशन, एफिडेविट देना कि हम लोग जो कंपनी खोल रहे हैं
ये जो कंपनी का जानकारी फर्निश हुआ है ये सारा सच है टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज एंड बिलीफ। तो ये चीज को बोला जाता है डिक्लेरेशन। तो ऐसा बहुत सारा डिक्लेरेशन देना पड़ता है एक्सपर्ट लोग को, सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम को। तो इसीलिए कहा गया है सबमिशन ऑफ स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस। एंड कंप्लायंस सारा लीगल एक्ट से, सारा लॉ से, सारा रूल से अपने कंप्लाई किए हैं, ये कंप्लायंस का भी डिक्लेरेशन है स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी मतलब लीगल कंपल्सरी, ठीक है ना। तो ये डिक्लेरेशन सबमिट करना इज स्टेप 4। डायरेक्टर का कंसेंट स्टेप 3 था। अच्छा, कंसेंट मतलब मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, कंपनी का आर्टिकल में लिखा है मिस्टर दास विल बी द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, तो ऐसे ही मिस्टर दास फिर डायरेक्टर हो जाएगा हर कंपनी में, जो भी कंपनी आर्टिकल जमा देगा? नहीं, मिस्टर दास का कंसेंट चाहिए, तो वो है स्टेप 3। नाउ यू गॉट इट, स्टेप 3 एंड स्टेप 4। ओके, तो सर directors consent to become a director in a company, and number 4 is compliance. Compliance what sir? Compliance का declaration, ठीक है, compliance declaration and other declaration। ओके सर, और क्या इसके बाद भी कंपनी को टाइम लगता है? हाँ, कंपनी थोड़ी ना ऐसे हो जाएगा, कंपनी को करने के लिए और भी टाइम लगेगा। टाइम तो 1 महीना लगभग लगता है। सर काम क्या है? सबसे मेन चीज देखो, पॉइंट नंबर 5, पे फीस एंड अमाउंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी इलेक्ट्रॉनिकली, जिसके बिना वो लोग देखेगा भी नहीं, कोई चीज प्रोसेस ही नहीं होगा, ठीक है। तो पे फीस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, पे फीस एंड स्टैम्प। ओके, स्टैम्प ड्यूटी। सर इसके बाद आप सो जाओ, मतलब आप नहीं, जो कंपनी करा रहा है वो इसके बाद रेस्ट लेगा, विश्राम करेगा, आराम करेगा। और जो आरओसी और जो एमसीए है, सीआरसी सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर, तो आरओसी एमसीए के अंदर रजिस्ट्रार का जो सेंट्रल ऑफिस है, वहां से इसको इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिलेगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, डिजिटली साइंड। ऑफ कोर्स अभी सब कुछ डिजिटल साइंड ही होता है, ठीक है। सो ये है स्टेप 6, डिजिटल, सॉरी, COI शॉर्ट में। सर व्हाट इज COI? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। लगभग 20-25 दिन और 1 महीना लग जाता है, डिपेंड्स, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। ओके, लास्टली फाइनल, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाने के बाद ये स्टेप है, बट ये इनकॉर्पोरेशन का स्टेप में एक स्टेप माना जाता है। COI आपको हासिल हो गया, आप COI होल्डर बन गए, मतलब आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन चलाया, मतलब आपका कंपनी जीवित हो गया। बट उसके होने के बाद आपको एक ई फाइलिंग करना पड़ता है, आपका रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस को ई फाइलिंग करना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो है, ये है फंडा ऑफ पॉइंट नंबर 7, ठीक है। ओके, पॉइंट नंबर 7, रजिस्टर्ड एड्रेस। तो दीज आर द 7 स्टेप्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एकदम दिमाग में याद रखना, कभी भूलना मत, ठीक है। ये बहुत प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं पढ़ाता हूँ, भले ही एग्जाम में डायरेक्टली ना आए, बट सिलेबस में है, चैप्टर में है, इंस्टीट्यूट का मटेरियल में दिखा रहा हूँ, तो आप लोग कई चीजें जानना चाहिए, ठीक है। ओके सर, इसके आगे जो लिखा है यहाँ, यही स्टेप्स को अच्छे से लिखाया हुआ है, घर में एक बार पढ़ना। देखो ये डिक्लेरेशन में मैं बोला था सब्सक्राइबर्स का डिक्लेरेशन, और डिक्लेरेशन में मैं बोला था एक्सपर्ट का डिक्लेरेशन, ठीक है ना। तो मेमोरेंडम आर्टिकल्स के बाद देखो क्या क्या लग रहा है, डिक्लेरेशन बाय पर्सन हु इज एंगेज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, ठीक है, यानी कि एक्सपर्ट हो गया जो कंपनी फॉर्म करा रहा है, CA हो, CS हो, ठीक है, CMA हो। फिर डायरेक्टर्स का कंसेंट, फिर डिक्लेरेशन ऑफ सब्सक्राइबर्स, मैं बोला था ना, वो सारा चीज दे रहा है। और क्या डिक्लेरेशन देगा सब्सक्राइबर्स या फर्स्ट डायरेक्टर्स? वो लोग बोलेगा कि हम लोग कॉन्विक्टेड नहीं है, हम लोग गिल्टी नहीं है, हम लोग लास्ट 5 साल में कुछ
जुर्म नहीं किए तो पकड़ा नहीं गए, तो ये सारा चीज। सर एड्रेस तो पता ही है, ठीक है, तो ये सारा चीज तुमको लगेगा यहाँ पे अलग से बोल दिया है सेम तरीके से। सर ये CIN सिन क्या होता है? CIN सिन होता है कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। हर एक कंपनी को एक सिन अलॉट किया जाता है, जो सिन नंबर इसका यूनिक आइडेंटिटी होता है। जैसे अपने को अपने पास बहुत सारा यूनिक नंबर्स है, पैन है, आधार है, तो ये सब अपना यूनिक है। मेरा पैन एंड मेरा आधार यूनिक है, मतलब ये और कोई नहीं मिलेगा, और किसी को सेम आधार नंबर या सेम पैन नंबर नहीं दिया जाएगा। तो वैसे ही कंपनी का आइडेंटिफिकेशन के लिए कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर या सिन बनाया जाता है। ओके सर, तो ये सारा मैं बोल दिया, ये सारा खुद से एक बार पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके बाद सर क्या है, इसके बाद स्ट्रेट अवे अपने शुरू किए थे ओपीसी, और ओपीसी खत्म भी हो गया था उसी क्लास में, लास्ट क्लास में वी हैव डन इट। Then section 8 companies, yes sir, we have done that also and we have finished that also. Okay, then sir, then we will start with उसके बाद वाला टॉपिक्स जो चैप्टर 2 में बाकी है, और पूरा कंप्लीट करेंगे, हड़बड़ी नहीं कर रहे, चैप्टर 2 को भी एकदम इज्जत से पढ़ा रहा है। ओके, नाउ ये मैं बोला था, ये मैं खुद ही बोल दिया था कि खुद से एक बार पढ़ लेंगे। I guess you guys remember that I have asked you effect of registration को खुद से एक बार पढ़ लेंगे, राइट? और तुम लोग पढ़े थे कि नहीं मेरे को, मतलब पढ़े हो कि नहीं मेरे को पता नहीं, बट यस पढ़ोगे तो आसान है, कोई बड़ा बात नहीं है। तो मैं कुछ छोड़ना नहीं चाहता हूँ, इसलिए पहले ही बोल दिया था खुद से पढ़ लेना, ठीक है। दिस कैन बी डन ऑन योर ओन, नो बिग डील, दिस इज अ वेरी इजी थिंग and you need not worry about it, and that is it. Okay, lastly just a moment, lastly मैं ये भी बोला था, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स को मैं थोड़ा शॉर्ट में तुम लोग को समझा दिया था, शॉर्ट में नहीं फुली समझाया था। बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लास में जब शुरू किया था, पहला दिन क्लास, उसमें भी समझाया था, और लास्ट क्लास में भी समझाया था, ठीक है। तो ये मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स वाला जो चीज है उसको भी मैं बोला था पढ़ने, ठीक है। मेमोरेंडम का मैं 7 क्लॉजेस बोल दिया था लास्ट क्लास में, नसॉल का NSO, नेम, सिचुएशन, ऑब्जेक्ट, लाइबिलिटी, कैपिटल, एसोसिएशन एंड नॉमिनी क्लॉज ओनली फॉर OPC, ओके। एंड उसके बाद we haven't done anything else as far as I remember. मैं थोड़ा बहुत ये क्लॉजेस का अंदर का जो लिखा हुआ चीज है तो थोड़ा सा एक बार ब्राउज थ्रू करा दे रहा हूँ, बट ये आएगा नहीं अलग से, बट इसका ज्ञान चाहिए होता है। और जो आज का पढ़ाई वाला चीज है वो आगे पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो सर आप बताइए ये मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स में क्या क्या लिखना पड़ता है। देखो मेमोरेंडम का डेफिनेशन सेक्शन 256 में दिया हो, सेक्शन 255 के बाद सेक्शन 256, 55 क्यों इतना इंपॉर्टेंट था? 55 वाज मेंबर एंड 56 इज मेमोरेंडम, MEME, तो याद रखना है इसे। अच्छा सर, मेमोरेंडम में क्या बोला गया है? मेमोरेंडम एक बेस डॉक्यूमेंट है टू फॉर्म अ कंपनी, इट इज अ बेस डॉक्यूमेंट टू फॉर्म अ कंपनी। मतलब एक कंपनी को फॉर्म करने के लिए एक बेस जो डॉक्यूमेंट चाहिए, उनमें से 2 डॉक्यूमेंट ऐसा है, मेमोरेंडम एक है, आर्टिकल दूसरा है, तो उनमें से एक है मेमोरेंडम। ऑफ कोर्स सर ये मेमोरेंडम आप बनाए हो, हाँ बहुत सारा, लगभग 10 के ऊपर मेमोरेंडम बनाया हूँ आज तक कंपनीज का। सर कंपनीज का ही बनता है मेमोरेंडम, हाँ बिल्कुल। अच्छा सर ये जो मेमोरेंडम है इसमें सबसे बड़ा क्लॉज कौन सा होता है? ऑब्जेक्ट क्लॉज, और कुछ नहीं। रियल लाइफ में बनाओगे तो तुम भी समझ जाओगे मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ। बाकी सारा क्लॉजेस एक लाइन में आ जाएगा, मैं दिखा दूंगा कोई मेमोरेंडम अभी सैंपल और भेज भी दूंगा ग्रुप में, बट बाकी सारा क्लॉजेस एक लाइन में आएगा। जो
जो सब्सक्राइबर क्लॉज है उसमें थोड़ा चार्ट रहेगा, एक नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स, एंड जो ऑब्जेक्ट क्लॉज है वो 2, 3, 4 पन्ने का भी हो सकता है, उससे भी ज्यादा हो सकता है, डिपेंड्स ऑन हाउ व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, कितना बड़ा करके ऑब्जेक्ट को लिख रहे हैं। ओके सर, सर बताइए ऑब्जेक्ट ऑफ रजिस्टरिंग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ऑफ कोर्स बहुत सारा कारण है जिसलिए मेमोरेंडम को अपने रजिस्टर कराते हैं, जाके पब्लिक को पता रहे अपना बारे में। ओके, फिर मेमोरेंडम ऑफ अ कंपनी में क्या क्या लिखा रहेगा वो तो मैं बोल दिया, नाम ऑफ द कंपनी, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, जहां पे क्या लिखा रहता है, फुल एड्रेस या सेल्फ स्टेट, ओनली स्टेट, देखो लिखा भी है स्टेट, खाली स्टेट लिखा रहता है। कभी कभी स्टूडेंट लोग क्रिएटिव बन के ना खुद से आंसर बनाना चाहता है, फुल रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में लिखा रहता है, नहीं, फिर उसको फुल नेगेटिव मार्क्स दिया जाता है, ठीक है, कि सेल्फ स्टेट का नाम लिखा रहता है। ओके, तो सर और क्या और है, ऑब्जेक्ट क्लॉज मैं बोला, प्राइमरी ऑब्जेक्ट एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्ट दोनों लिखा रहेगा, बहुत बड़ा क्लॉज है ये, बहुत ही बड़ा क्लॉज। सर लाइबिलिटी क्लॉज, लाइबिलिटी में सिर्फ लिखा रहेगा लाइबिलिटी कैसा है, लिमिटेड, अनलिमिटेड, गारंटी या शेयर्स। अच्छा सर फिर ये शेयर कैपिटल हो तो क्या होगा, गारंटी होगा, ये तो पढ़ लिए थे पहले। अच्छा सर ये नेम क्लॉज कैसे मिलता है, ये लोग वो भी आंसर में पूछा है। हाँ, ये नेम क्लॉज अप्लाइंग फॉर द नेम ऑफ द कंपनी, मैं बोला था ना स्टेप 1 है इनकॉर्पोरेशन का। तो देखो ये नाम में ना कुछ कुछ चीज याद रखना पड़ेगा, क्लाइंट को भी बोलोगे और आंसर में भी लिख सकते हो कि बोलो कोई कंपनी का नाम तुम ऐसा रख सकते हो जो कोई एग्जिस्टिंग कंपनी का नाम है, कोका कोला प्राइवेट लिमिटेड, कैन आई कीप माय कंपनीज नेम, नो, the name which you are suggesting to keep cannot resemble or closely be identical to any name which already exists. ऐसा एक नाम को रिजेंबल नहीं कर पाएगा जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, क्या, तुम्हारा कंपनी का नाम जो तुम रखना चाहते हो, whatever name you want to keep for your company cannot resemble any name which already exists or resembles another company or is too identical to another company. Okay sir, सर कोई अनडिजायरेबल नेम रख सकते हैं, जैसे सर AIB, सुने हो ना AIB, फुल फॉर्म मत बोलना, AIB जो है ये एक नाम है ना, बट ये अब्यूजिव है ना, सबको पता है, सबको पता है सर। सो AIB क्या कंपनी का नाम है, नहीं, AIB is not the name of the company, it is the name of the show, it is the name of a show, तो शो का नाम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, तो शो का नाम वो है, कंपनी का नाम वो नहीं है, कंपनी का नाम वो रखने ही नहीं देता, MCA फाइन कर देता, ठीक है। तो द आइडिया इज एनी अनडिजायरेबल नेम जिसमें गवर्नमेंट का नाम हो या कोई गाली गलौज हो या कोई वैसा अनडिजायरेबल अब्यूजिव लैंग्वेज हो या कोई मिस नॉर्मर बोला जाता है, मिस नॉर्मर हो, ठीक है, मेरा कंपनी का नाम में मैं लिख दिया सेंट्रल स्टेट ऐसे करके लिखा, लोगों को लगे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है, तो ये सब गलत है, तो ये सब नाम नहीं देगा। तो नाम पहले बहुत अच्छे से चूज करना पड़ता है, फिर ये जो नाम को अपने रिजर्व करते हैं इसको रन फॉर्म में दिया जाता है, मैं लास्ट क्लास भी बोला था, रिजर्व यूनिक नेम, रन का फुल फॉर्म क्या है, रिजर्व यूनिक नेम, तो रन फॉर्म में ये नाम का एप्लीकेशन किया जाता है आजकल, आज जो करते हैं, सपोज करो इसी वीक मेरे को एक कंपनी को रजिस्टर कराना है तो मैं क्या करूंगा, रन फॉर्म, पहले ही रन फॉर्म में ये करूंगा, अलॉन्ग विथ नॉमिनल एक फी लगता है। ओके सर, सर अब बताइए कि इसके आगे अपने क्या देखे थे, आगे बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं प्रैक्टिकल रियल लाइफ का जानने के लिए। देखो नाम रिजर्वेशन एक है, नाम रिजर्वेशन के लिए ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, तुम लोग का भी ऑब्जेक्टिव आ गया ना, अपॉन रिसीट ऑफ द एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 4 द रजिस्ट्रार may on the basis of information documents furnished along with the application reserve the name for a period of 20 days, नेम रिजर्व करके रख देगा 20 दिन के लिए, यानी कि आपने जो नाम चुना है आपका नाम वो 20 दिन रिजर्व करेगा फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल और सच अदर पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, provided that in case of application for reservation of name or for change of its name by an existing company, अगर एक एग्जिस्टिंग कंपनी ये करे तो रजिस्ट्रार उसको 60 दिन देगा, मतलब नया कंपनी को
20 दिन मिलेगा, और जो रजिस्टर्ड कंपनी है, एग्जिस्टिंग कंपनी है, तो फिर उसको 60 दिन मिलेगा। कैंसेलिंग अ नेम, ठीक है, कैंसेलिंग अ नेम। अच्छा सर, ये 20 दिन और 60 दिन क्या चीज के लिए? इसको 60 दिन में नेम चेंज करने के लिए, और इसका 20 दिन इनकॉर्पोरेशन करने के लिए, वही नाम से बाकी प्रोसेस शुरू कर देने के लिए। ओके सर, कैंसेलिंग अ नेम क्या है? देखो, आज मैं रिजर्व कर लिया, आज मैं रिजर्व कर लिया, बट कंपनी को इनकॉर्पोरेट नहीं किया स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर, तो नेम कैंसिल होगा या नहीं होगा? नेम कैंसिल हो जाएगा। एंड वो जो व्यक्ति रिजर्व करके नहीं कराया, उसको पेनल्टी हो सकता है, विच में extend to 1 lakh. देखो पढ़ो, if the company has not been incorporated, the reserved name shall be cancelled and the person who has made the application shall be liable to penalty of rupees 1 lakh. सर मतलब बहुत भयंकर अभी पेनलाइज हो रहा है ना। हाँ, 2013 वाला एक्ट इज टू स्ट्रिंजेंट एंड इट इज, यू नो, इट इज वेरी 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 वेरी, इट हैज हेवी पेनल प्रोविजंस, हेवी पेनल प्रोविजंस। ओके सर, सर बताइए कि ये जो है, if the company is incorporated, after giving the company opportunity of being heard, either direct the company to change its name within a period of 3 months after passing ordinary resolution, and take action for striking of the name of the company from the registrar of companies, and make a petition winding up of company. तो देखो, if the company has been incorporated, अगर incorporate हो चुका है, रजिस्ट्रार क्या करेगा? रॉन्ग नेम के साथ अगर हुआ है, देखो, कैंसिलिंग नेम वेयर रिजर्वेशन ऑफ नेम, it is found that name was applied by furnishing wrong or incorrect information, तब जाके कंपनी अगर इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ तो नाम कैंसिल कर देगा। कंपनी अगर इनकॉर्पोरेट हो चुका तो कंपनी को वाइंड अप करा देगा। क्लियर है? क्योंकि इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन देके तुम नहीं बना पाओगे, तब कैंसिल होगा। ठीक है, तो नेम का बहुत सारा रूल्स है। देखो, एम्ब्लेम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट, तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, बट सब कुछ उतना गहराई में ना देखने से भी चलेगा, क्योंकि इंडिया में जितना एक्ट्स है, उतना दिन तुम्हारे पास नहीं है। ठीक है, ओके। लॉ का स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं इतना, ऊपर ऊपर पढ़ता है हर एक्ट। सर डोमिसाइल क्लॉज लिख के रखो, डोमिसाइल क्लॉज का बगल में अदर नेम ऑफ सिचुएशन क्लॉज, जो सेकेंड वाला क्लॉज में बोलता हूँ उसी का दूसरा नाम है डोमिसाइल क्लॉज। नेम ऑफ द स्टेट, सिचुएशन क्लॉज। ओके सर, सर अब बताइए, ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स है, जो सीए फाउंडेशन में अपने पढ़े थे, ये क्या है? और एक बार बोल दीजिए। मैं एक बार चाहता हूँ, मैं बोलने से पहले आप लोग एक बार इसको पढ़ो ऑनेस्टली। सीए फाउंडेशन में जब पढ़े थे तब तो समझ में नहीं आया था, अभी कितना हेल एंड हेवन का फर्क हो गया है, आजमा लो। एक बार रीड करो इसको, पेज 21 में तुम लोग के पास भी है, और मेरा बोर्ड में भी, मतलब स्क्रीन में भी दिख रहा है, तो स्क्रीन से भी पढ़ सकते हो। एक बार पढ़ के देखो, बहुत अच्छा लिखा हुआ है, बहुत आसान चीज है, तुम लोग को पता है ऑफ कोर्स। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, अल्ट्रा वायर्स का मतलब मैं बोला था बचपन में ही, तुम लोग सुन लिए थे, बियॉन्ड द पावर। अल्ट्रा मीन्स बियॉन्ड, वायर्स मीन्स पावर। ठीक है, बियॉन्ड द पावर ऑफ अ कंपनी, अ कंपनी कैन नॉट गो बियॉन्ड द पावर। एक बार रीड करो, आई एम देयर। फर्स्ट रीडिंग असाइनमेंट फॉर टुडेस क्लास।
ओके, पढ़ लिए। बोल रहे कि मैं पूरा नटशेल में बता रहा हूँ, एक बार सुनना। बोला जा रहा है कि डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स में कि कोई भी कंपनी में जो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में लिखा रहेगा, कोई भी कंपनी का मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में जो लिखा रहेगा एमओए एंड एओ में, उसके खिलाफ कोई भी कंपनी जा नहीं पाएगा। एंड दैट इज द डॉक्ट्रिन ultra vires. The company's directors do not have powers to act beyond what is written in its memorandum or articles. But then again, ध्यान से सुनना, but then again, अगर एक कंपनी अपना आर्टिकल्स में कुछ लिखा है और उसके खिलाफ जाता है और पोस्ट फैक्टो मतलब बाद में उसका जो जितना भी मेंबर्स है सारा मेंबर्स उस काम को अप्रूव कर देता है, जिसको बोला जाता है सब्सिक्वेंट अप्रूवल या रैटिफिकेशन। सो इफ एन एक्ट which is beyond the power or scope of an articles of a company, if an act which is beyond the power or scope of a company as per its articles is ratified by the shareholders or the members, that is subsequent approval मिल जाए, then such an act is within the power. वो एक्ट को हम लोग लेजिटिमेट मान सकते हैं। बट अगर बात किया जाए मेमोरेंडम का, क्या कोई भी चीज एक कंपनी अपना मेमोरेंडम के खिलाफ कर सकता है? द आंसर इज नेवर। ऑल सच एक्ट शैल बी एंड मस्ट बी वॉइड एब इनिशियो। कोई भी कंपनी अगर मेमोरेंडम के खिलाफ जाके कुछ कर रहा है, वैसा काम के लिए कंपनी कैन नेवर बी मेड लायबल एंड द डायरेक्टर्स विल पर्सनली सफर एंड इवन द मेंबर्स कैन नॉट ratify such an act of a company. यही लिखा है ना, यही लिखा है ना, हाँ या ना guys? Have you read it? This is what is written largely. Okay, all right. This case law was very famous from foundation days. Okay, now we will go सब्सक्रिप्शन क्लॉज में बोल दिया, एक चार्ट में सब्सक्राइबर्स का नाम, एड्रेस, नंबर ऑफ शेयर हेल्ड लिखा रहता है, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग। सर ये टेबल्स क्या है? आर्टिकल्स में बोल दिया, बहुत सारा रेगुलेशंस रहता है, बस देखना। सर ये डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या था, और डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के साथ साथ आप और एक पढ़ाए थे, कोई नाम बता पाओगे? डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के साथ साथ मैं क्या पढ़ाया था? उल्टा, उसका उल्टा हिंट दे दिया। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट बोलता है क्या, मैं याद दिला रहा हूँ। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट बोलता है कि अंदर में, एक कंपनी का अंदर में जो भी कंप्लायंस करना चाहिए, जो भी नियम कानून पालन होना चाहिए, वो सारा चीज डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में माना जा रहा है, वो कंपनी कर रहा है। बट कंस्ट्रक्टिव नोटिस एक था, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। वो कंस्ट्रक्टिव नोटिस में क्या था? करेक्ट जो लिखा कंस्ट्रक्टिव नोटिस, तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस में क्या था? कंस्ट्रक्टिव नोटिस में अपने सोचते थे कि ये जो एक कंपनी कर रहा है, इसका नोटिस बाहर वालों को है या नहीं है। इसका एक केस लॉ था, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, और वो टर्क्वाइंट रूल बोला जाता था। टर्क्वाइंट याद है? सॉरी, रॉयल ब्रिटिश बैंक का केस था, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्क्वाइंट रूल बोला जाता था। एक बार इसको भी घर में पढ़ना, याद आ जाएगा। मैं फाउंडेशन में बहुत अच्छे से पढ़ाता था और अभी भी ये बोलता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये जो है बाकी पार्ट ऑफ द चैप्टर में आ रहे हैं अभी,
एक्ट टू ओवरराइट मेमोरेंडम एंड आर्टिकल सेक्शन 6 बोलता है, ये एकदम टाइटल से ये अपेरेंट है। एक्ट बड़ा है या मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स? ऑफ कोर्स एक्ट बड़ा है, एक्ट बड़ा है। देखो, द प्रोविजन सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द एक्ट, provisions of this act shall have effect when it is in contradiction with memorandum or articles. Okay, और जो प्रोविजन मेमोरेंडम आर्टिकल्स या एग्रीमेंट में है जो एक्ट के खिलाफ है वो वॉइड हो जाएगा। क्लियर है? तो यही बोला गया है, सेक्शन 6 यही बोलता है सर। हाँ, अच्छा, इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स पढ़ भी सकते हो, नहीं भी पढ़ सकते हो, ठीक है। ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम इंपॉर्टेंट लिखो, सेक्शन 13 में बगल में लिखो इंपॉर्टेंट। वी आर डूइंग दिस चैप्टर होनली फ्रॉम बुक, जस्ट राइट डाउन इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज ओके। ये प्रोसीडियर कभी कभार पूछा जाता है केस लॉ के माध्यम से या डायरेक्टली पूछा जाता है कि एक मेमोरेंडम जो है कैसे एक आपका जो कैसे एक हाउ if you want to change the clause in a memorandum, then how will you change it? How will you change a clause in a memorandum? तो देखो क्या लिखा है, बोला है as per section 2 subsection 3 alteration मतलब चेंज करना, includes making addition, omission और substitutions। तो प्रोसीडियर फॉर ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम क्या है वो बोल दिया। बोला पहले स्पेशल रेजोल्यूशन पास कीजिए, स्पेशल रेजोल्यूशन यानी कि एसआर, फिर नेम चेंज ऑफ द कंपनी। अच्छा सर, नेम चेंज ऑफ द कंपनी अगर करना है तो वो भी तो ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम है। हाँ, मेमोरेंडम में कोई भी क्लॉज को चेंज करना है इज ऑल्टरेशन ऑफ द मेमोरेंडम। तो पहला क्लॉज तो नेम रहता है, इसीलिए नेम चेंज लेके बोला। तो नेम चेंज के लिए किसका अप्रूवल लगता है? सीजी का अप्रूवल। नेम चेंज तुम ऐसे नहीं कर पाओगे। एनी चेंज शैल बी अफेक्टेड ओनली विद अप्रूवल ऑफ सीजी, मतलब एमसीए। सीजी कौन है? एमसीए, ठीक है, इन राइटिंग। नो सच अप्रूवल शैल बी नेसेसरी। अच्छा बोलो, वर्ड मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन रहा हूँ या पब्लिक से प्राइवेट बन रहा हूँ, क्या मेरे को नाम चेंज करना पड़ेगा? हाँ, पीवीटी लिमिटेड से लिमिटेड या लिमिटेड से पीवीटी लिमिटेड। द वर्ड पीवीटी शैल बी एडेड और डिलीटेड डिपेंडिंग ऑन वेदर आई एम बिकमिंग अ प्राइवेट और वेदर आई एम बिकमिंग अ पब्लिक कंपनी। आर यू गेटिंग मी? कन्वर्टिंग। तो बोल रहे कि ये भी तो नाम चेंज है, क्या इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लगेगा? तुम बताओ। नहीं, वही बोला, नो सच अप्रूवल शैल बी नेसेसरी बट द चेंज ऑफ द नेम is only addition or deletion of the word private. Okay sir, the change of name shall not be allowed to a company which has not filed annual returns or financial statements. जो annual returns और financial statements furnish नहीं किया उसको change of name करने ही नहीं देगा, उसको सजा है। क्या पता कल भाग जाए, नाम चेंज करा रहा है इसलिए चालाकी करके, ठीक है ना। अच्छा सर, एंट्री इन रजिस्टर ऑफ कंपनीज, ऑफ कोर्स फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन उसको फ्रेश नाम के साथ मिलेगा तो फ्रेश एंट्री भी होगा, ठीक है। चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस, अगर एक स्टेट से दूसरा स्टेट में जा रहा है, सिचुएशन क्लॉज या डोमिसाइल क्लॉज, अगर एक स्टेट से दूसरा स्टेट में जा रहा है कंपनी तो फिर अप्रूवल ऑफ सीजी लगेगा, विद इन स्टेट में नहीं लगेगा। ओके, डिस्पोज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ चेंज ऑफ प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस कैसे करना पड़ेगा बोल दिया, 60 दिन, कंसेंट एटसेट्रा, फिर रजिस्ट्रार के साथ फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। ओके सर, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वापस फ्रेश आएगा। हाँ, स्टेट चेंज होगा तो नया स्टेट का नया रजिस्टर उसको नया सर्टिफिकेट देगा, ठीक है। ओके, चेंज इन ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, वेरी इंपॉर्टेंट लिखो, स्पेशल रेजोल्यूशन से होगा और इंग्लिश न्यूज़पेपर और उसमें पोस्टल बैलेट का जो रूल है वो है, ठीक है। ओके, सॉरी, this is a chart I wanted to show you. This is one of the best chart in this chapter, पूरा समरी करके जो अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम है कैसा कब करना पड़ेगा, कौन सा क्लॉज को कैसे ऑल्टर करने से क्या है, एक चार्ट में दे दिया।
तो लिख के रखो, वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू डू दिस चार्ट, दिस इज मोर देन इनफ. Section 13 dealt with alteration of memorandum. So section 14 will deal with alteration of articles. Serially सजाया हुआ है. So alteration of articles कैसे होगा थोड़ा देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो बगल में लिख लीजिए इंपॉर्टेंट. ऑल्ट्रेशन, इसमें भी स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा, यानी कि ज्यादातर लोग को हाँ बोलना पड़ेगा. ऑल्ट्रेशन टू इंक्लूड कन्वर्शन ऑफ कंपनीज. अच्छा सर, ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, अगर कोई कंपनी प्राइवेट से पब्लिक बने और पब्लिक से प्राइवेट बने, कैसे इसका इम्पैक्ट होगा? अच्छा बोलो, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का क्या रहता है? रेस्ट्रिक्शन रहता है, प्रोहिबिशन रहता है, याद है ना? एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का 3 फीचर रहता है. एक, मेंबर्स कैन नॉट बी मोर देन 200. नंबर 2, इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू ट्रांसफर शेयर्स, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज रेस्ट्रिक्टेड है. एंड इट इज प्रोहिबिटेड मतलब मना किया हुआ है. रेस्ट्रिक्शन तो पाबंदी है, प्रोहिबिशन है क्या चीज में? टू इशू शेयर्स टू पब्लिक और इशू सिक्योरिटीज टू पब्लिक. तो देखो वही चीज है, कन्वर्शन करने के लिए प्राइवेट से पब्लिक में क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा? मेमोरेंडम या आर्टिकल्स? आर्टिकल्स में ये 3 क्लॉजेस डालना पड़ेगा अगर पब्लिक लिमिटेड को प्राइवेट बनाना है और प्राइवेट लिमिटेड को पब्लिक बनाना है, तो ये 3 क्लॉजेस आर्टिकल से क्या करना है? उठा देना है. ठीक है, तो यही बोला. फिर ऑल्टर्ड आर्टिकल को वापस रजिस्ट्रार के साथ फाइल करना पड़ेगा 15 दिन. ठीक है, 15 दिन के अंदर अंदर, और तब फाइल करने के बाद ऑल्ट्रेशन वैलिड होगा और ऑल्टर्ड कॉपी को फिर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, नया कॉपी को. ठीक है, वही बोला सेक्शन 17, कॉपीज ऑफ मेमोरेंडम आर्टिकल्स एटसेट्रा टू बी गिवन टू मेंबर्स. अच्छा सर, ये तो दूसरा है, ये तो सेक्शन 17 बोल रहे हैं कि मेंबर्स अगर आर्टिकल से या मेमोरेंडम मांगता है तो उन लोग को 7 दिन के अंदर देना पड़ेगा. सर कहाँ लिखा है? पढ़ो एक बार. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17, एवरी कंपनी ऑन बीइंग रिक्वेस्टेड बाय अ मेंबर शैल सेंड कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विद इन 7 days ऑन रिक्वेस्ट ऑफ फीस. हाँ, फीस नहीं देगा तो नहीं देगा. ओके, डिफॉल्ट के लिए पेनल्टी बहुत ज्यादा है. अगर कंपनी नहीं दिया 7 दिन के अंदर या देने से मना कर दिया कोई मेंबर को कॉपी ऑफ मेमोरेंडम और आर्टिकल, तो उसको डिफॉल्ट लगेगा. क्लियर है? फाइन लगेगा. अच्छा सर, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ अ कंपनी, लिखो इंपॉर्टेंट, लिखो इंपॉर्टेंट, खुद से देखना. इंपॉर्टेंट है बट कुछ समझाना नहीं, बहुत आसान है, सबसे आसान है. प्रोसीडियरल चेंज इन प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, मैं बोल दिया था मेमोरेंडम का चेंज करते वक्त बोला था. ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम सेक्शन 13 में सेम चीज बोला था. कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ये नया है, देखो न्यू प्रोविजन. न्यू प्रोविजन मैं समझाऊंगा अभी, हाईलाइट करो. न्यू प्रोविजन है मतलब न्यू मतलब लास्ट साल आया. लास्ट साल मतलब सर 2019 नवंबर. ठीक है सर, 2019 नहीं 2018. हाँ 2018 में. ओके, नाउ ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना. ये क्या बोल रहे हैं सर? कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, पहले कंपनीज एक्ट 1956, थोड़ा हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, अच्छा लगता है. कंपनीज एक्ट 1956 में 2 सर्टिफिकेट कंपनी को दिया जाता है. एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन COI जो अभी भी है, और दूसरा था सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. कंपनीज एक्ट 2013 में बोला कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन काफी है. इतना कुछ सर्टिफिकेट देके क्या करोगे? एक ही तो चीज है, बिजनेस कमेंस करेगा और एक सर्टिफिकेट. बिजनेस कमेंस करने के पहले कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ, इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट, तो बोला हटा दो उसको, तो हटा दिया. फिर 2018 साल में नवंबर से कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस रूल्स जो निकला, जो लिखा है तुम लोग का बुक में 2019, उसमें बोला कि देखो जो भी कंपनी विद इफेक्ट फ्रॉम नवंबर से फॉर्म होगा, नवंबर का 2 तारीख 2018, जो भी कंपनी फॉर्म होगा वो सारा कंपनीज को इनकॉर्पोरेशन का डेट के 6 महीना यानी कि 180 दिन के अंदर अंदर एक सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस हासिल करना पड़ेगा. और सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस हासिल करने से ही वो लोग
बिजनेस कमेंस कर पाएगा, मतलब बिजनेस कमेंस नहीं कर पाएगा जब तक ये सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। मतलब सपोज करो इनकम मिल रहा है, कोई पैसा मिल रहा है कस्टमर से, तो बिजनेस का खाता में नहीं ले पाएगा, बिजनेस का बैंक अकाउंट में नहीं ले पाएगा, ये गलती हो जाएगा और ये मिस नॉन कंप्लायंस हो जाएगा। गॉट इट? सो दिस once again certificate of commencement of business got introduced under new act also in late 2018। पढ़ो आप, समझ में आएगा। देखो, a company incorporated after commencement of company's amendment ordinance, and when did amendment ordinance commence? ये बुक में नहीं लिखा है, मैं तो बोल दिया रियल लाइफ ज्ञान, 2 नवंबर 2018, you can write। and having a share capital not commence any business or exercise any borrowing powers, business और borrowing powers नहीं कर पाएगा, बैंक में पैसा नहीं ले पाएगा जब तक ये डिक्लेरेशन 180 डेज, मैं बोला ना 180 डेज के अंदर अंदर नहीं होगा। क्लियर है? क्लियर है? इज इट क्लियर? और वही पेनल्टी लगेगा अगर नॉन कंप्लायंस हुआ तो। ओके, रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ कंपनी, सेल्फ चेंज इन नेम, वही बोला, सेम चीज जो मैं बोल दिया, नाम कैसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, और उसका फाइन। कन्वर्शन ऑफ कंपनीज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, सर ये क्या है? ये भी बोल दिया, एक बार वापस बोल दे रहा हूँ। सेक्शन 18 सुनो, सेक्शन 20 सॉरी सेक्शन 22 तक है इस चैप्टर में, 23 से तो चैप्टर 3 है। ओके, सेक्शन 18 बोलता है ऑलरेडी रजिस्टर्ड कंपनी को कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट मतलब क्या चीज कन्वर्ट कर सकते हो? एलएलपी में कन्वर्ट कर सकते हो, बहुत सारा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अभी एलएलपी में भी बन जा रहा है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी बन सकते हो। तो दोनों में से एक ही तो चॉइस होगा, या पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनोगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से, या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से एलएलपी बनोगे। ओके, तो बाय ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स तुमको बदलना पड़ेगा, फिर तुमको अप्लाई करना पड़ेगा रजिस्ट्रार के पास, फिर तुमको नया इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू होगा, एंड जो तुम्हारा डेट्स लायबिलिटीज था प्रीवियसली वो रह जाएगा, उससे तुमको छुटकारा नहीं मिलेगा नाम चेंज करने से या कंपनी को बदलने से। ये सेक्शन 19 को लिखो, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी समझेंगे हम लोग, डोंट वरी, राइट डाउन, इंपॉर्टेंट। बोला है subsidiary company not to hold shares in its holding company। सपोज करो X लिमिटेड holds 60% shares in Y लिमिटेड। सर तो X क्या है? X is a holding of Y, and Y is a subsidiary of X। बोला है कि अगर ये आज हो रहा है, ये कौन सा तारीख को हुआ? लेट्स से आज ही होल्ड किया, 22 तारीख, 22 जून। तो सर ये आज अगर हुआ है तो क्या आज के बाद Y लिमिटेड X लिमिटेड का शेयर्स खरीद पाएगा? नहीं, यही प्रोहिबिशन है, एक सब्सिडियरी अपना होल्डिंग का शेयर्स नहीं पकड़ पाएगा। सर अगर आज से पहले से ही 21 तारीख या 20 तारीख का पहले से ही अगर Y ऑलरेडी होल्ड कर रहा है शेयर्स X में, तो क्या वो होल्ड कर पाएगा? हाँ, दैट दे कैन। मतलब होल्डिंग, सब्सिडियरी का होल्डिंग बनने से पहले अगर सब्सिडियरी होल्डिंग का कोई शेयर्स होल्ड करा हुआ है तो वो एक्सेप्शन नंबर 1 वो लोग पकड़ रहे हैं। तो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन नंबर 1 मैं समझा दिया। इफ द सब्सिडियरी ऑलरेडी हेल्ड शेयर्स ऑफ होल्डिंग। सर ऐसा और एक्सेप्शन है? हाँ, नंबर 2 भी है, नंबर 3 भी है। सर पढ़ाएंगे? हाँ पढ़ा रहा हूं, एक सेकेंड। क्लियर है? सर कहां पे लिखा हुआ है? देखो ये सेक्शन 19 यही पे तो है बुक में सामने। नो कंपनी शैल ईदर बाय इटसेल्फ और थ्रू इट्स नॉमिनीज होल्ड एनी शेयर्स इन इट्स होल्डिंग कंपनी।
and no holding company shall allot or transfer shares to its subsidiary. ठीक है, and ये सारा क्या हो जाएगा, void, provided that nothing in this subsection shall apply to a case. exceptions लिख के रखो सर, आपका एक्सेप्शन तो दिखाई नहीं दिया, मेरा एक्सेप्शन वो लोग नंबर सी में लिया, नंबर 1 नहीं, नंबर सी में लिया। देखो पढ़ो, where subsidiary company is a shareholder even before it became a subsidiary company to the holding company. and सर और भी दो है, हाँ मैं बोला था ना ए और बी भी है। ए में बोला अगर तुम लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो, जैसे सर सपोज करो कोई मेंबर है जिसका सब्सिडियरी कंपनी, जिसका कंपनी वो अपना शेयर्स इन द होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी का नाम पे करके चला गया और चल बसा, नॉमिनी है सब्सिडियरी कंपनी, सो कैन एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव देन द सब्सिडियरी बिकम द शेयर होल्डर इन होल्डिंग? यस, ठीक है, सो एज अ लीगल representative it can. Second exception is as a legal rep. Okay sir, number 3 बोल रहा है कि trustee, as a trustee. सर ट्रस्टी कौन होता है? ऑफ कोर्स ट्रस्ट, अगर ट्रस्ट के नाम पे शेयर्स है, ट्रस्ट वो हो गया, तो ट्रस्ट का तो रिप्रेजेंटेटिव कौन है? ट्रस्टी, और ट्रस्टी का नाम ही लिखा रहता है। और ट्रस्टी अगर वाई लिमिटेड है कोई ट्रस्ट का, जो ट्रस्ट होल्ड करता है एक्स लिमिटेड को, कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा होता है रियल लाइफ में, हाँ बहुत सारा, तो तब y can be a shareholder. So as a trustee also a subsidiary can hold shares in a holding. So trustee legal representative या फिर पहले से होल्ड करता है। ये 3 एक्सेप्शन है। बारिंग these 3 exceptions, section 19 prohibits holding of shares of a holding company by the subsidiary. क्लियर है? ओके सर, इंपॉर्टेंट था। अभी देखो, अभी सेक्शन 20, 21 एंड 22 कुछ भी नहीं है, बट हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि अपने सब कुछ कंप्लीट किए हैं और करेंगे। 20, 21 एंड 22 आर द easiest ऑफ द लॉट। ओके, once again someone has a query, I will go slow, don't worry. Someone has a query, the query is sir once more एक बार section 19 समझाइए। समझा दे रहा हूँ, डोंट वरी, भागे नहीं जा रहा हूँ, आज टाइम लेके पढ़ा रहा हूँ, देखो टाइम भी क्रिएट हो गया। नाउ आई सेड सेक्शन 19 क्या बोलता है? सेक्शन 19 बोलता है, सेक्शन 19 अभी नहीं है, अभी 20 बोर्ड में है, मैं 19 बोल रहा हूँ, सुन लीजिए। 19 बोलता है कि कोई भी सब्सिडियरी कंपनी अपना होल्डिंग का शेयर्स होल्ड नहीं कर पाएगा, ना कि होल्डिंग उसको अपना शेयर्स अलॉट कर पाएगा, इसका इंग्लिश में लिखा हुआ है। और बोला है 3 सर्कमस्टेंसेस में इसका एक्सेप्शन किया जा सकता है जहां पे होल्डिंग का शेयर सब्सिडियरी होल्ड कर पाएगा। एक, अगर सब्सिडियरी बनने से पहले ही होल्ड करता था, दूसरा अगर सब्सिडियरी एज अ ट्रस्टी होल्ड कर रहा है, और तीसरा अगर सब्सिडियरी एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव होल्ड कर रहा है। In that case, in these 3 cases, subsidiary can hold the shares of holding after becoming a subsidiary. Barring these 3 cases, a subsidiary cannot hold the shares of a holding. Clear है? Okay. So section 20 क्या है? Section 20, 21, 22. 3 sections are left. We will do it and we will wrap up today's class. Okay. All right. अब ध्यान से सुनना। Section 20 क्या बोलता है? Serving of notice. Section 20 क्या बोलता है सर? Serving of notice. Sorry. सर ये सर्विंग ऑफ नोटिस क्या है, किसको है, क्यों है? बहुत आसान चीज है सर, नोटिस नहीं डॉक्यूमेंट, साहब गलती लिख दिया, डॉक्यूमेंट्स, टेक्निकल टर्म्स गलत नहीं होना चाहिए। सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट, सर ये क्या है सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स? अच्छा, कोई कंपनी को मैं कुछ भी चीज सर्व करूंगा तो कहां पे करूंगा, तो वो सेक्शन 20 गाइड कर रहा है। देखो ऑफ कोर्स ना पढ़ के तुम लोग जवाब दे सकते हो, उतना कॉमन सेंस तुम लोग का है, रजिस्टर्ड ऑफिस वही लिखा होगा, एक बार पढ़ते हैं। सेक्शन 20 ऑफ कंपनीज एक्ट प्रोवाइड्स द मोड, देखो वेरी इंपॉर्टेंट, द मोड कहां पे सेट नहीं और कैसे भी, द मोड का मतलब कैसे सर्व होगा डॉक्यूमेंट्स, in which documents may be served on the company, on the members and also on the registrars.
तो कोई भी डॉक्यूमेंट कंपनी को रजिस्ट्रार या मेंबर को कैसे देगा, और मेंबर या रजिस्ट्रार कंपनी को कैसे देगा, मतलब टू एंड फ्रो फ्रॉम द कंपनी डॉक्यूमेंट्स कैसे आएगा, मोड और कहां पे आएगा, पता, ये लेके बोला है देखो सर्विंग, पहला केस बोला है सर्विंग ऑफ कंपनी टू द कंपनी, मतलब कंपनी को कैसे दिया जाएगा, तो बोला गया है कंपनी पे या कंपनी का ऑफिसर या डायरेक्टर पे कोई भी डॉक्यूमेंट अगर सर्व करना है तो रजिस्टर्ड ऑफिस में करना है, और कैसे करना है, मोड क्या है, दीज आर द मोड्स। मोड 1 इज रजिस्टर्ड पोस्ट, मोड 2 इज स्पीड पोस्ट, मोड 3 इज ना देख के भी बोल सकते हो क्योंकि ये बहुत कॉमन सेंस है, कुरियर, स्पीड, ठीक है, रजिस्टर्ड। फिर क्या है सर, फिर अगर मैं रजिस्टर्ड ऑफिस में हाथ में जाके एनवेलप देके आऊं, यानी कि लिविंग एट द रजिस्टर्ड ऑफिस नंबर 4, या फिर ईमेल करूं इलेक्ट्रॉनिक, तो क्या क्या है, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर सर्विस, लिविंग इट एट द ऑफिस बाय हैंड और बाय ईमेल, ठीक है। और अगर कंपनी किसी को सर्व करे, कंपनी अगर रजिस्टर या मेंबर को दे तो फिर कैसे देगा, पोस्ट, देखो तब एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया, बाकी सब सेम है, पढ़ो, पोस्ट भी ऐड हो गया, पोस्ट पहले नहीं था, ऑर्डिनरी पोस्ट, पोस्ट का मतलब ऑर्डिनरी पोस्ट, स्नेल मेल, ठीक है, रजिस्टर्ड, स्पीड, कुरियर, डिलीवरिंग एट ऑफिस और इलेक्ट्रॉनिक, बाकी सारा सेम है, खाली पोस्ट भी है। तो कंपनी जब बाहर वालों को देगा तब पोस्ट भी उसका ऑप्शन में है, सेक्शन 20 बोल रहे, बट कंपनी को जब दिया जाएगा तब पोस्ट ऑप्शन में नहीं है। क्लियर है, नोट करके पढ़ो तो हर सेक्शन में अपना यूनिक चीज दिखाई दे देगा, यूनिक चीज यही था ना, क्लियर है, ओके, क्लियर है, ओके, लेट अस गो अहेड जल्दी से सेक्शन 21 समझो। बोल रहे कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स का ऑथेंटिकेशन कैसे होगा, मतलब ये डॉक्यूमेंट सही है या गलत है, कंपनी का है या नहीं, ये ऑथेंटिकेट कैसे होगा, प्रूफ कैसे होगा, वो डॉक्यूमेंट में साइन होना चाहिए, किसका सर, साइन होना चाहिए कंपनी का बिहाफ में, ईदर बाय द केएमपी और बाय द डायरेक्टर हु इज ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो वही बोला गया है, केएमपी जो भी डॉक्यूमेंट कंपनी से आएगा, कॉन्ट्रैक्ट्स कंपनी का होगा, वो सब में ऑथेंटिकेशन कैसे होगा, ऑथेंटिकेशन होगा कंपनी का बिहाफ में साइनिंग से। कंपनी का बिहाफ में साइनिंग कौन करेगा, केएमपी करेगा या फिर एनी अदर ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू एक्ट ऑन बिहाफ। तो यही दो बोला गया है। सेक्शन 21 ये बोलते हैं, केएमपी का डेफिनेशन वापस दे दिया, क्लियर है। लास्ट चीज, सेम चीज, डॉक्यूमेंट्स के बदले अगर बोला बिल्स, चेक्स, एग्जीक्यूशन कंपनी के बिहाफ में कौन करेगा, सेम कौन कौन करेगा, देखो एक बार पढ़ लो, ये लास्ट है, इसके बाद खत्म है, ठीक है, एक बार खुद से पढ़ो, बहुत आसान चीज है, देखो समरी खत्म है, लास्ट पेज है, पूरा चैप्टर 2 खत्म कराया, एक पेज नहीं छोड़ा। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हाईलाइट करना चाहते हो तो इसको हाईलाइट कर लो, कंपनी का कॉमन सील लेके होगा, और कॉमन सील अगर नहीं है तो ऑथराइजेशन शैल बी मेड बाय 2 डायरेक्टर्स और बाय अ डायरेक्टर एंड अ सीएस। सीएस का यूटिलिटी समझ में आया, सीएस वाले स्टूडेंट ज्ञानवी समझ में आ रहा है सीएस का क्या है, ओके। ओके गाइस, ये चार्ट में वही बोल रहा है, एक बार चार्ट ही मैं पढ़ा दे रहा हूँ, जल्दी हो जाएगा तुम लोग का। कंपनी हैविंग कॉमन सील, अगर नो है तो कंपनी का कॉमन सील अगर नहीं है, वही तो पहले बोला, 2 डायरेक्टर या फिर एक डायरेक्टर एंड सीएस। कंपनी का अगर कॉमन सील है तो इन राइटिंग ऑथराइज एनी पर्सन जनरली और इन रेस्पेक्ट ऑफ स्पेसिफिक मैटर्स एज अटॉर्नी, तो अटॉर्नी कर पाएगा उसके बिहाफ में बिल ऑफ एक्सचेंज, क्लियर है, यही बोला गया और कुछ नहीं है सेक्शन 22, ठीक है। अब जल्दी से ये टेस्ट योर नॉलेज, अच्छा मैं एक जनरल ज्ञान देने वाला हूँ, ज्ञान देके छोड़ूंगा, 5-10 मिनट लगेगा, आज 3:30 बजे के अंदर क्लास खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, पहले मैं बता रहा हूँ हम लोग का, पहले मैं प्लानिंग करने वाला हूँ जो आज क्लास का शुरुआत में नहीं किया,
पढ़ाई देके चालू कर दिया। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है प्लानिंग, यही इसमें हो रहा था मेरे ख्याल से। हाँ, चैप्टर 2 एक हो गया, ठीक है, चैप्टर 2 वी हैव डन, ठीक है। मैं एक बार लाइव प्लानिंग कर ले रहा हूं, ये वेडनेसडे को होगा। वेडनेसडे को क्या होगा, सर्टेन सेक्शंस व्हिच वर लेफ्ट आउट, जो मैं बहुत ही स्मूथली कराऊंगा। मिसलेनियस है इसलिए आज नहीं किया, मिसलेनियस चैप्टर 2 हॉच पॉच हो जाएगा। मिसलेनियस एक दिन में करो, पूरा कर लो, ठीक है। तो सर इसके साथ क्या होगा, इसके साथ डाउट्स क्लियरेंस होगा। तो वेडनेसडे का क्लास, इसलिए आज नोटिस भी दे दे रहा हूं, वेडनेसडे का क्लास में थोड़ा पढ़ाई करके आना। पढ़ाई करके आना मतलब सर पढ़ाई करोगे तभी तो डाउट होगा। तो वेडनेसडे का क्लास में प्लीज कम अ लिटिल प्रिपेयर्ड सो दैट यू कैन आस्क मी इफ देयर आर एनी डाउट्स जो तुमको क्लियर करना है, ठीक है। ओके सर, व्हाट अबाउट दिस, उसके बाद का क्लास, उसके बाद फ्राइडे तो ऑडिट होगा, फ्राइडे ऑडिट होगा। तो फ्राइडे के बाद अपने क्या करेंगे, फ्राइडे के बाद वापस नेक्स्ट मंडे, मैं बता रहा हूँ कौन सा तारीख, सब लिख दे रहा हूँ। नेक्स्ट वीक वी विल डू इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, जो कि सॉरी जनरल क्लॉजेज एक्ट। एंड उसके बाद अपने 1 तारीख को यानी कि 7/1/2020 को अपने करेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, यानी कि नेक्स्ट वेडनेसडे 1 तारीख को खत्म हो जाएगा। तो जुलाई में खत्म होने का बात था, एकदम 1 जुलाई खत्म हो जा रहा है, कोई इशू नहीं है। अच्छा, और अपने डाउट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड एनआई एक्ट, ये तो बाद में होना चाहिए क्योंकि एनआई एक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो घर में पढ़े नहीं, पढ़ोगे, मैं दे दूंगा क्लास, वो भी इस वीक में बोल दूंगा। अच्छा सर, ये डाउट्स एक सेशन होगा और एक रिवीजन एंड अमेंडमेंट सेशन होगा। रिवीजन एंड अमेंडमेंट एक नहीं, दो तीन हो सकता है, छोटा छोटा रिवीजन अमेंडमेंट सेशन, वही रिवीजन एंड अमेंडमेंट सेशन, और ये मिला के 2-3 क्लास मिल सकता है, ठीक है। तो ये प्लानिंग है, हाँ ये प्लानिंग है, ये रिवाइज प्लान कर लिए, ठीक है। तो ये है फंडा, ओके, यू कैन कॉपी इट एंड राइट डाउन, ओके। अब सर नेक्स्ट दिन के लिए जो डाउट्स है उसका ना मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मेरे को व्हाट्सएप कर देना। और दूसरा जो चीज है, I will ask from the student, I am asking only, Sampurna, you will give me all the, संपूर्ण ज्ञान on क्या क्या टॉपिक छूट गया था, because you remembered it, I remember, we had a conversation, so you do that, okay. So Wednesday's class is an exclusive class for your Companies Act, मिसिंग लिंक्स को पूरा एकदम अच्छे से करना, और कंपनीज एक्ट का ओवरऑल और सारा एक्ट का ओवरऑल मिसिंग लिंक, रिवीजन एंड अमेंडमेंट एंड आउट क्लियरिंग क्लास बाद में भी होगा, डोंट वरी, ठीक है। अभी मैं आज का क्लास का कुछ डाउट्स है तो वो लूंगा। आज का क्लास में पहला डाउट है सृष्टि का। सृष्टि एज अ क्वेरी, सर व्हाट इज अ हुंडी, कैन एनीवन आंसर, आई वुड लाइक टू मेक दिस क्लास इंटरैक्टिव। मैं उसको अनम्यूट करूंगा, बोलने दूंगा, हुंडी के बारे में किसको पता है तो बताओ, हाथ उठाओ, मतलब चैट में लिखो तो मैं उनको बोलने दूंगा, वर्बली बोलना तो वो मजा आएगा। अच्छा, हुंडी को मैं एक शब्द में लिख दे रहा हूँ, थोड़ा आसान हो जाएगा। हुंडी का मतलब है लोकल बिल। ऐसे लिख लोगे तो तुम्हारा, सॉरी कहाँ पे लिख रहा हूँ, ऐसे लिख लोगे तो तुम्हारा आसान लगेगा। लोकल बिल, क्या नाम है, लोकल बिल। लोकल बिल का मतलब सर, लोकल बिल का मतलब तो होता है कि लोकल जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है अपना, इंडिजीनियस बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, कोई फॉर्मल बिल जैसा बिल नहीं। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में बिल का जो डिस्क्रिप्शन और वो दिया हुआ है वैसा बिल नहीं। कैसा बिल, लोकल मार्केट में जो बड़ा बाजार में जो हुंडी, चिट्स में, चिटकुट में लिख के कोई पैसा का लेन देन कर रहे हैं, तो वैसा इंस्ट्रूमेंट्स को अपने बिल नहीं बोल पाएंगे, बट इंडिजीनियस बिल बोल पाएंगे। वैसा बिल को अपने बोलते हैं इंडिजीनियस लोकल लैंग्वेज में हुंडी। गॉट इट, गॉट इट, ओके, ऑल राइट सर। और कुछ डाउट है नहीं तो मेरे को दूसरा चीज बोलना है। मैं बोला था 3:30 तक होगा आज। दूसरा चीज जो बोलना है ध्यान से सुनना। स्टैम्प कोई कराएगा नहीं, स्टैम्प करा भी सकते हो नहीं भी करा सकते हो, बट बिल्स को तो स्टैम्प कराना ही पड़ेगा।
ठीक है। अच्छा अब ध्यान से सुनना, ये मेन चीज जो मेरे को बोलना था आज, कैसे घर में पढ़ोगे, यही बोलना था, 5-10 मिनट लगेगा, ज्यादा नहीं। हर एक चैप्टर को, हर एक चैप्टर को मेरा क्लासेस जो लोग किए हो, मेरा कॉपी और ये वाला बुक सी इंस्टीट्यूट का मटेरियल जिससे मैं कराया, जाके आप लोग का वो भी बने, थोड़ा बुक को पहचाने आप लोग। ये बुक के नीचे टेस्ट ऑफ नॉलेज पूरा, और टेस्ट ऑफ नॉलेज के नीचे क्वेश्चन आंसर्स पूरा, हर एक चैप्टर का करोगे। उसके साथ साथ मेरा पीपीटी और मेरा नोट्स, ये अगर कोई कर पाया उसको लॉ में 60 का नीचे नहीं दिखेगा सर, गारंटी, गारंटी अभी दे रहा हूँ, रिकॉर्ड करो, मोबाइल ऑन करके रिकॉर्ड कर लो, गारंटी दे रहा हूँ कि अगर लॉ में कोई ये चैप्टर्स ये बुक से करे और मेरा पीपीटी से समझे और मेरा क्लास नोट से समझे, उसके बाद ये टेस्ट योर नॉलेज और एक्सरसाइज 1-2 बार देख ले, उसको 60 के नीचे टफेस्ट पेपर में भी नहीं आएगा, टफेस्ट पेपर में भी। ओके, तो यही मैं बोलने वाला था, और ये बहुत अच्छे से ब्रेन में मैप कीजिए कैसे क्या करोगे घर में। चैप्टर 7 से शुरू करो क्योंकि वो फर्स्ट किए थे, चैप्टर 7 मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, मैड एमएडी, ठीक है। मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन से शुरू किए थे तो वो से शुरू करो, एजीएम सेक्शन 96 पहला सेक्शन था आप लोग का, ठीक है। तो उससे शुरू करके बुक को पूरा छान लो, बुक के साथ साथ मेरा पीपीटी, और उससे जल्दी पढ़ो, फिर बुक को देखो, और उसके बाद टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग एंड टेस्ट योर नॉलेज, एंड लास्ट में क्वेश्चन आंसर्स देखो, पास्ट पेपर्स का क्वेश्चन आंसर्स ऐसा। ये पूरा हर चैप्टर में ऐसा अप्रोच करने के बाद डाउट्स जॉट डाउन करते जाओ, डाउट्स जॉट डाउन करते जाओ, कभी कभार मेरे को पूछते जाओ, मेहनत करो। जिन लोग का दोनों ग्रुप है, ऑडिट का भी ऐसा मेहनत शुरू करो, ठीक है। यही बोलना था। नेक्स्ट क्लास अगर कोई डाउट्स है तो डाउट्स लेके आना, क्योंकि पहले अनकवर्ड टॉपिक्स करा दूंगा, उसके बाद डाउट्स का टाइम दूंगा। आज तो डाउट्स प्रिपेयर नहीं था, तो जिन लोग का जो डाउट्स था मैं एडहॉक वाला बोल दिया, प्लान वाला नेक्स्ट क्लास करके लाना। नेक्स्ट क्लास कंपनीज एक्ट का फॉर्मल लास्ट क्लास है, ठीक है। सब कुछ हो ही गया है अपना, जो सेक्शंस छूट गया था वो भी बोल दूंगा, और नेक्स्ट क्लास ही बोल दूंगा तुम लोग का ऐप का क्या बंदोबस्त होगा। ऑडिट एज यूजुअल फ्राइडे जैसे होगा, ठीक है सर। नेक्स्ट क्लास 2 बजे होगा क्या? नहीं, नेक्स्ट क्लास 3 बजे ही होगा शायद, बट मैं बोल दूंगा 2 या 3 ही हो रहे हैं अभी क्लास। थैंक यू।